today our topic is neurolinguistic, and we are going to study about what is the connection between psycholinguistics and neurolinguistics. And after that we will study today that how both the fields, both the terms are different from each other. Well, dear student, as we have studied in our previous lecture about psycholinguistics, that what is linguistic, I mentioned that linguistic is the scientific study of language, and psycholinguistic is the combination of both psychology and linguistic, and it is a study of mental processes that a person uses in producing and understanding language and how humans learn language. And after that we studied that what are the main branches of psycholinguistics, and I mentioned that the main branches are language processing, language acquisition, and neurolinguistic. So our topic is one of the third main branches of psycholinguistic, that is neurolinguistics. Well, neurolinguistic is the study of neural mechanism in the human brain that control the comprehension, production and acquisition of language. यानी कि ये एक ऐसी स्टडी है जो कि न्यूरल फिलॉसफी, न्यूरल मैकेनिज्म को स्टडी करता है, एंड इट इज़ द मेन इन द ह्यूमन ब्रेन में, और ये कंट्रोल करता है कॉम्प्रिहेंशन को, प्रोडक्शन को एंड एक्विजिशन को लैंग्वेज की, यानी कि किसी भी लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन, प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन को ये हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये तमाम चीज़ों को एक ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करता है. हैरी विटकर explained that neuroscience, linguistics, cognitive science, neurobiology, communication disorder, and neuropsychology and computer sciences, these all are the interdisciplinary fields of neurolinguistics. और ये उन्होंने अपने एक जर्नल में बताया था, द जर्नल ऑफ न्यूरोलिंग्विस्टिक इन 1985. Well, my dear student, I want to mention one of the most important thing over here, that who is the father of neurolinguistics. So remember this point कि क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि who is the father of neurolinguistic, and the father is John Grinder. Neurolinguistic programming was developed in the 1970s. 1970 में ये प्रोग्राम जो है वो डेवलप हुआ था at the University of California, सेंटा कर्ज में, एंड इट्स प्राइमरी फाउंडर एज जॉन ग्रिंडर, जो कि इसका प्राइमरी फाउंडर था इस सेंटर का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था, जो कि एक लिंग्विस्ट थे, रिचर्ड ब्लेंडर, एन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन. वो एक इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे. सो यहाँ पे आपने ये पॉइंट जो है बिल्कुल भी नहीं भूलना कि जॉन ग्रिंडर इज़ द फादर ऑफ न्यूरोलिंग्विस्टिक्स. Well, dear student, in our previous lecture we have studied about the subfield of psycholinguistic और linguistic के linguistic की subfields कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने स्टडी किया कि phonetic जो है, which is the study of speech connection. Subfield phonetic is the study of speech sounds, and research question in neurolinguistic में इस field से related कौन से हो सकते हैं, that how the brain extracts speech sounds from an acoustic signal, and how the brain separates speech sound from background noise. तो ये क्वेश्चन जो है वो न्यूरोलिंग्विस्टिक की फील्ड में या रिसर्च में फोनेटिक की फील्ड से रिलेटेड है. सेकेंड आवर सब फील्ड इज फोनोलॉजी. एज यू नो दैट, and we have already discussed in our previous lecture, that phonology is the study of how sounds are organized in a language. So as far as the neurolinguistic field is concerned, तो इसमें research question क्या बनेगा, that how the
फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन द ब्रेन, कि माइंड में, ब्रेन में जो फोनोलॉजिकल सिस्टम है किसी भी मखसूस लैंग्वेज का, वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है. एंड आवर थर्ड सब फील्ड इज मॉर्फोलॉजी एंड लेक्सिकोलॉजी. एज यू नो दैट मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर स्ट्रक्चर्ड, कि किस तरह से वर्ड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, एंड स्टोर्ड, और उनको सेव किया जाता है इन मेंटल लेक्सिकॉन. As far as the research question of neurolinguistics is concerned, so here the question arises that how the brain store and accesses words that a person knows. And our next subfield is syntax. Syntax means the study of how multiple word utterances are constructed. So इस फील्ड से रिलेटेड जो न्यूरोलिंग्विस्टिक रिसर्च क्वेश्चन होगा वो है दैट is how the brain combines word into constituent and sentences, or how structure and semantical information is used in understanding sentences. That is related to semantic as well. Semantic जैसे कि आप लोगों को मैंने previous lecture में explain किया था, semantic is the subfield of psycholinguistic and linguistic, and that is the study of how meaning is encoded in language, कि किसी भी लैंग्वेज में मीनिंग को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, इनकोड किया जाता है. सो आई होप दैट ऑल द सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स आर क्लियर नाउ. वेल, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कनेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड द ब्रेन, कि इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है. द ह्यूमन ब्रेन इज स्फेरिकल इन शेप. It is divided into two hemispheres, and these hemispheres are connected by a bundle of nerves called the corpus callosum. Now let's discuss the other parts of the brain. As you know that human brain is divided into parts like cerebrum, and cerebrum is the front part of the brain, and it is composed of right and left hemisphere. जैसे कि आपको अभी यहाँ स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि एक लेफ्ट ब्रेन है एंड राइट ब्रेन है. एंड देन वी हैव ब्रेन स्टेम. द ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन का मिडल पार्ट होता है, एंड इट इंक्लूड द मिड ब्रेन, द पोन्स एंड मेडुला. उसके बाद सेरिबेलम आता है हमारे पास. एंड द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 बेसिक यूनिट्स. ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्रेन की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, 3 बेसिक यूनिट्स होते हैं. द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ब्रेन, वैसे आप जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो सेंटर है एक नर्वस सिस्टम का, एंड इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द बॉडीज सेंसरी ऑर्गन्स, के जितने भी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी पार्ट के, जो 5 सेंसेस से रिलेटेड हैं, उन ऑर्गन से ये मैसेजेस, ये सिग्नल्स रिसीव करता है, एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन टू द मसल्स. उसके बाद मसल्स को ये इंफॉर्मेशन आगे फर्दर आउटपुट की फॉर्म में कन्वे कर देता है. द ह्यूमन ब्रेन हैज़ द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एज अदर मैमल्स ब्रेन. जिस तरह के दूसरे मैमल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर भी सेम ही है, बट इट इज़ larger in relation to body size than other brains. So now we are going to study some brain facts के जो left brain है और right brain है, इनका क्या functions हैं. As I have mentioned earlier that the human brain is divided into 2 hemispheres. हमारे पास 2 hemispheres हैं इसके, या हम जिनको कह सकते हैं 2 parts हैं, left brain and right brain. And these are connected by a bundle of nerve fiber जिनको हम कहते हैं corpus callosum. The hemispheres are strongly, though not entirely, symmetrical. The left brain controls all the muscles on the right hand side of the body, and the right brain controls the left side. ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखना है कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो सारे मसल्स जो है वो राइट साइड वाले को कंट्रोल को करता है, और राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट साइड के तमाम मसल्स को कंट्रोल करता है. एंड वन हेमिस्फीयर मे बी स्लाइटली डोमिनेंट एज
with left or right handedness. द पॉपुलर नोशन अबाउट लेफ्ट ब्रेन. अब लेफ्ट ब्रेन को हम देखते हैं कि लेफ्ट ब्रेन के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर नोशन है वो ये है कि लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन क्वालिटीज़ आर जनरलाइजेशन दैट आर नॉट वेल सपोर्टेड बाय एविडेंस. द लेफ्ट ब्रेन कंटेन्स रीजन इन्वॉल्व इन स्पीच एंड लैंग्वेज. ठीक है, आपके सामने पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि स्पीच और लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी डोमेन्स हैं वो लेफ्ट ब्रेन में ऐड होती हैं. लेफ्ट ब्रेन कंटेन रीजन्स इन्वॉल्व इन स्पीच एंड लैंग्वेज, जैसे कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि ब्रोकाज एरियाज एंड वर्निक्स एरियाज रिस्पेक्टिवली. इस एरियाज को, इन तमाम एरियाज को जो है वो लेफ्ट ब्रेन जो है वो कंटेन करता है. एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड फैक्ट्स, जैसे कि हॉलैंड ने भी बताया था. इसमें हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो डोमेन्स हैं. एक तो लॉजिक, एनालिसिस, सीक्वेंसेस, लीनियर मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, फैक्ट्स, थिंक इन वर्ड्स एंड वर्ड्स ऑफ सॉन्ग एंड कंप्यूटेशन. ये तमाम जो एरियाज हैं दीज आर रिलेटेड टू, दीज आर लोकेटेड इन लेफ्ट ब्रेन. सो अब हम देखते हैं कि राइट ब्रेन में कौन कौन से एरियाज मौजूद हैं. द राइट ब्रेन प्लेज अ रोल इन विजुअल एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग. ठीक है, विजुअल और ऑडिटरी के प्रोसेस से जितने भी रिलेटेड मैटर्स हैं वो राइट ब्रेन में जो है वो से रिलेटेड हैं. एंड स्पैटियल स्किल्स एंड आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, मोर इंस्टिंक्टिव और क्रिएटिव थिंग्स जितनी भी हैं वो तमाम राइट ब्रेन से, इसको हम जो है वो राइट हेमिस्फीयर का नाम भी दे सकते हैं, इससे रिलेटेड है. एवरीवन यूज बोथ हाफ्स एट द सेम टाइम, क्योंकि माइंड, इंसान जो है वो लेफ्ट ब्रेन भी और राइट ब्रेन को एट द सेम टाइम यूज़ कर रहा होता है. तो इसमें जो जो एरियाज, जो डोमेन है राइट ब्रेन में, वी हैव क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, होलिस्टिक थिंग्स, इंट्यूशन, आर्ट्स या मोटर स्किल जिसे हम कह सकते हैं, रिदम या बीट्स, टोन से रिलेटेड, नॉन वर्बल फीलिंग्स हैं, विजुअलाइजेशन है, ट्यून ऑफ सॉन्ग्स है, एंड डे ड्रीमिंग. यानी कि विजुअलाइजेशन, क्रिएशन और इमेजिनेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास जो फील्ड्स हैं, एरियाज हैं, वो राइट हेमिस्फीयर या राइट ब्रेन से इंटरकनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं. द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिबल कॉर्टेक्स. आउटर ब्रेन क्या कहलाती है इसकी? सेरिबल कॉर्टेक्स कहलाती है. ये बात आपने जो है वो अच्छे से जहन नशीन कर लेनी है. सेरिबल कॉर्टेक्स क्या होती है डियर स्टूडेंट? इट इज़ द थिन लेयर. एक थिन लेयर होती है ब्रेन में. ठीक है, जिस तरह आपको ये लेयर नज़र आ रही है, थिन लेयर है ब्रेन में, दैट कवर्स द आउटर पोर्शन. जितना भी आउटर पोर्शन है ब्रेन का, ये उसको कवर करती है. और मिनिमम इसका जो एक अप्रॉक्सीमेटली साइज़ है 1.5 mm to 5 mm भी होता है ऑफ द सेरिब्रम का. इट कवर्ड बाय द मीनिंग्स एंड ऑफन रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर्स. द कॉर्टेक्स इज ग्रे. कॉर्टेक्स भी आपको जो ग्रे लाइन नज़र आ रही है, ग्रे है बिकॉज नर्व्स इन दिस एरिया लैक द इंसुलेशन दैट मेक मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अपीयर्स टू बी वाइट. आगे देख लेते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का. सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इज मेड अप ऑफ सेवरल बिलियन नर्व्स. तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि सेवरल बिलियन नर्व्स जो हैं मिलकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बनाती हैं. नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी हायर ऑर्डर ब्रेन्स फंक्शन, जैसे कि सेंसेशन है, परसेप्शन है, मेमोरी, एसोसिएशन, थॉट एंड वॉलंटरी फिजिकल एक्शन जितने भी हैं वो हमारे तमाम सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बिलोंग करते हैं. द सेरेब्रम इज the large main part of the brain and serves as the thought and control center के तौर पर ये serve करता है. Now the next point is the cerebral cortex जो है वो further divide होती है into 4 lobes. इसके 4 लोब्स के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं. दैट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन लोब्स.
the frontal lobes, the parietal lobes, the occipital lobe and the temporal lobe. As far as their functions are concerned, each side of your brain contains 4 lobes, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया. Now the frontal lobe is important for cognitive function. Cognitive function से रिलेटेड जितने भी हमारे जो हैं रोल्स हैं वो इससे बिलोंग करते हैं. एंड द कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी. द पैरिटियल लोब जो है वो प्रोसेस करती है इंफॉर्मेशन को अबाउट टेम्परेचर, टेस्ट, टच एंड मूवमेंट. एंड ऑसिपिटल लोब जो है इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन. ये विजन से रिलेटेड होती है. ये पिक्चर में भी आपको तमाम जो 4 लोब्स हैं ये यहाँ पे क्लियर हैं. देन ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम जो है वो क्या काम करता है? ब्रेन स्टेम जो है वो रेगुलेट करता है हार्ट रेट को, ब्रीथिंग को, ब्लड प्रेशर को, स्वेलोइंग को और डाइजेस्टिंग. इन तमाम सिस्टम को हमारा ब्रेन स्टेम जो है वो रेगुलेट करता है. Now as far as the mind's areas are divided, so here I am going to tell you few of the areas which are being divided by the some anthropologists or physicians. So Broca's area. तो अब माइंड में वो कौन सा एरिया है जो कि ब्रोकाज एरिया कहलाता है? सो बेसिकली दिस एरिया इज नेम्ड आफ्टर पॉल ब्रोका. पॉल ब्रोका कौन है? एक फ्रेंच फिजिशियन हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. और ये एरिया क्या है? इज अ स्मॉल पैच, एक छोटा सा पैच है इन द इंटीरियर मीन फ्रंट ऑफ द टेम्पोरल लोब. ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है इसमें, ये वाला एरिया ऑफ द लैंग्वेज डोमिनेंट हेमिस्फीयर. लैंग्वेज डोमिनेंट हेमिस्फीयर वाला जो ये एरिया है दैट इज कॉल्ड ब्रोकास एरिया. नेक्स्ट वी हैव वर्निक्स एरिया. वर्निक्स एरिया इज नेम्ड आफ्टर कार्ल वर्निक. कार्ल वर्निक कौन है? एक जर्मन फिजिशियन है. इट इज़ अ लार्ज एरिया देन इट इज़ लार्जर देन द ब्रोकास. ये ब्रोका के एरिया से जो थोड़ा सा जो वो बड़ा एरिया है और ब्रेन में एंड लोकेटेड फर्दर टूवर्ड्स द पोस्टेरियर, यानी कि बैक ऑफ द ब्रेन में ये मौजूद होता है. एज फॉर एज द ब्रोकास एरियाज एंड वर्निक्स एरियाज आर कंसर्न कि ये किस तरह से हेल्प करते हैं हमें. ब्रोकास एरियाज हेल्प इन प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट स्पीच. ठीक है, ये आप इसको माइंड में रखें कि ये प्रोड्यूस करता है ब्रोकास एरिया कोहेरेंट स्पीच को प्रोड्यूस करने में इंसान की हेल्प कर. ऑन द अदर हैंड वर्निक्स एरिया हेल्प्स इन स्पीच प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज को समझने में और उसके स्पीच के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है. सो आई होप दैट ब्रोकास एरिया एंड वर्निक्स एरियाज आर क्लियर टू यू. Now Broca's and Wernicke's areas are connected by a bundle of nerves called arcuate fasciculus. ठीक है, arcuate fasciculus जो है वो एक बहुत ही यानी कि बंडल की तादाद में जो एक न्यूरॉन्स हैं ये उनसे कनेक्टेड होते हैं. जैसा कि आपके पास अब यहाँ पर ये ब्रोकाज एरिया है, ठीक है, और ये वर्निक्स एरिया. अब ये दोनों आपस में जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं वो एरिया हमारा क्या कहलाता है? वो क्या चीज़ है? दैट इज़ बंडल ऑफ न्यूरॉन. और इन तमाम न्यूरॉन्स को हम कहते हैं आर्क्यूएट फैसिकुलस. वेल नाउ वी हैव अनदर थिंग दैट इज़ अफेजिया. अफेजिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. अफेजिया क्या है? अफेजिया इज़ अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है दैट रोब्स यू ऑफ द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट. It can affect your ability to speak, write and understand language. यानी अब ये दोनों तरह से हो सकती है, वर्बली भी एंड नॉन वर्बल यानी रिटन फॉर्म में भी हो सकती है. यानी कि हर तरह से लैंग्वेज की स्पीकिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो डैमेज हो जाती है या वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है. फेजिया जो है वो टिपिकली अकर सडनली आफ्टर अ स्ट्रोक और अ हेड इंजरी. यानी कि सर पर कोई भी चोट लगी है, माइंड उस पर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है, तो उससे जो डिजीज़ या जो मेंटल डिसऑर्डर होता है दैट इज़ कॉल्ड अफेजिया.
अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं जो कि कार्टिस ने 1985 में दी थी. दैट इज़ एन एक्वायर्ड लॉस ऑफ लैंग्वेज ड्यू टू सेरेब्रल डैमेज characterized by error in speech comprehension and word finding difficulties, and it is a language disorder that results in brain damage caused by disease or trauma. और ये डेफिनेशन जो है वो दी थी फ्रॉमकिन रोडमैन ने. सो जैसे कि अफेजिया को हम डिस्कस कर चुके हैं. अफेजिया की फर्दर जो है वो आगे 3 टाइप्स हैं. अभी हम पहले पढ़ चुके हैं जो फिजिशियंस हैं और न्यूरोलॉजिस्ट. ब्रोका. अब ब्रोका ने जो इसके बारे में बयान किया वो एक टाइप इसकी ब्रोकास अफेजिया है. द पर्सन एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लुएंट स्पीच एंड यूज ऑफ लेक्सिकल वर्ड. अब लेक्सिकल वर्ड से रिलेटेड या फ्लुएंटली स्पीकिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे वो ब्रोकास अफेजिया में काउंट होते हैं. एंड कॉम्प्रीहेंशन इज बेटर देन प्रोडक्शन. दो और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो प्रोडक्शन से ज़्यादा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स जो है एक डोमेन है, फील्ड है और बेटर भी है. एंड डेफ पेशेंट जितने भी होते हैं शो डेफिशिएंट इन साइन लैंग्वेज. अब सेकंड जो इसकी अफेजिया की टाइप है वो है वर्निक्स अफेजिया. वर्निक्स ने जो अफेजिया के बारे में जो बयान किया वो है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्वेयर डिफ़िकल्टीज इन कॉम्प्रीहेंशन बट क्वाइट फ्लुएंट स्पीच. यानी कि कॉम्प्रीहेंशन में तो उनको स्वेयर किस्म की डिफ़िकल्टीज फेस करता है इस अफेजिया वर्निक्स अफेजिया का जो पेशेंट होगा. विच इज़ ऑफन एब्स्ट्रूट एंड मे इंक्लूड नॉन सेंस वर्ड्स. यानी कि इस तरह के नॉन सेंस और स्टूपिड किस्म के वर्ड जो हैं वो लोग या इसके पेशेंट जो हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं. And the third type of aphasia in which the accurate fasciculus suffers damage वो है conduction aphasia. Comprehension, fluency of speech is usually little affected. ठीक है, ये दोनों जो चीज़ें हैं किसी हद तक जो है ये दोनों अफेक्टेड होती हैं. However, victims face difficulties in repeating words. यानी कि वर्ड जो भी उसको बोलने के लिए कोई भी वर्ड दिया जाता है तो उसको रेपिटेशन में उसको डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करता है. जो भी इसका विक्टिम होगा, जो भी इसका जो है वो इस बीमारी में मुब्तला होगा बाय अदर पर्सन एंड इन मॉनिटरिंग देयर ओन स्पीच विच लीड टू हेजिटेशन एंड पॉजेज. यानी कि जब वो पेशेंट या वो विक्टिम जब इसको बोलता है जो कि कंडक्शन अफेजिया का शिकार होगा वो हेजिटेशन होगी उसमें या वो बोलने के दौरान फ्लुएंसी नहीं होगी बल्कि पॉजेज होंगी उसकी स्पीच में. तो अब तक हमने इसकी 3 जो है वो टाइप्स पढ़ ली हैं, ब्रोकास की, वर्निकी एंड कंडक्शन अफेजिया की. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. तो स्टूडेंट जहाँ तक अब तक हम लोगों ने स्टडी किया है तो हमने देखा कि ब्रेन का कितना ताल्लुक है न्यूरो लिंग्विस्टिक्स से. हाउ आवर ब्रेन स्टोर इंफॉर्मेशन इन नेटवर्क ऑफ ब्रेन सेल्स जिसको हम न्यूरॉन्स का नाम देते हैं. तो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन सेल्स की सूरत में स्टोर होता जाता है, सेव होता जाता है हमारे माइंड में. दीज न्यूरल नेटवर्क्स आर अल्टीमेटली कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन. अब ये जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्रेन के पार्ट से दैट कंट्रोल आवर मूवमेंट, जो कि हमारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है. और ये मूवमेंट कौन सी होती है? ये मूवमेंट I am talking about the movement particularly that is including those needed to produce speech. यानी कि स्पीच को प्रोड्यूस करने में जो मूवमेंट दरकार होती है या रिक्वायर होती है. एंड आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंसेशन जैसे कि साउंड, साइट्स, टच एंड दोज दैट कम फ्रॉम आवर ओन मूवमेंट. नाउ द कनेक्शन विद इन दीज नेटवर्क मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक. अब ये जो कनेक्शन है मूवमेंट का और हमारे न्यूरॉन की नेटवर्किंग का ये वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है. एंड द इंफॉर्मेशन दैट अ सेल सेंड्स आउट में इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सम ऑफ इट्स नेबर्स एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ अदर्स. हर बार जब भी कनेक्शन को हम यूज़ करेंगे इट गेट्स स्ट्रॉन्गर. यानी कि जितना हम ये कनेक्शन यूज़ करेंगे उतना ही ये स्ट्रॉन्ग होगा. डेंसली कनेक्टेड नेबरहुड ऑफ ब्रेन सेल्स कैरी आउट computation that are integrated with information coming from other neighborhoods.
और इसमें मोस्टली जो इन्वॉल्व होता है वो फीडबैक लूप्स होते हैं एंड मैनी कंप्यूटेशन आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली. द ब्रेन इज़ अ मैसिवली पैरेलल इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के तौर पर यहाँ पर काम करता है. तो ये है हमारे ब्रेन की वर्किंग, कि ब्रेन किस तरह से काम करता है. अब क्वेश्चन आता है वेयर इज़ लैंग्वेज इन द ब्रेन, कि जैसे कि न्यूरोलिंग्विस्टिक है क्यों जिसका ताल्लुक ब्रेन से भी है और माइंड और लैंग्वेज से भी है. तो हमारी लैंग्वेज जो है वो ब्रेन में किस जगह पर मौजूद होती है. ठीक है, ये जो हमारा ओवरऑल ब्रेन है इसमें किस जगह पर हमारी लैंग्वेज जो है वो मौजूद है, किस प्लेस पर, किस लोकेशन पर. नाउ दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड टू आंसर. ये इतना ईजी क्वेश्चन नहीं है. ये भी एक पूरा प्रोसेस से रिलेटेड है. इसमें एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है क्योंकि ब्रेन एक्टिविटी इज़ लाइक द एक्टिविटी ऑफ ह्यूज सिटी. अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़े सिटी की एग्जांपल दूंगी. एक सिटी क्या होता है? सिटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड सो दैट पीपल हु लिव इन इट कैन गेट व्हाट दे नीड टू लिव ऑन. कि जो भी उनको चाहिए होता है वो शहर में एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मौजूद होता है. बट यू कैंट से दैट अ कम्प्लेक्स एक्टिविटी, कि ये कम्प्लेक्स एक्टिविटी है लाइक मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो एक प्लेस पर होती है क्या? नहीं होती. रॉ मटेरियल को अगर हम देखें तो हैव टू अराइव एट द राइट टाइम्स. वो अपने मौजूदा वक्त पर ही हमें मिलता है. ठीक है, या तो उसका मौसम होता है या उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है. सब कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनको जिस चीज़ की इसको ज़रूरत होती है द प्रोडक्ट मस्ट बी शिप्ड आउट इन वेरियस डायरेक्शन. और जो उसके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं मज़ीद उनको जो वो प्रोडक्ट्स जो है वो शिप्ड आउट की जाती हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन में. एक ही जगह पर एक ही बंदे को एक ही मकाम पर वो शिप्ड आउट नहीं होती. एंड इट इज़ द सेम विद आवर ब्रेन. इसी तरह से ही हमारे ब्रेन में जो ब्रेन का प्रोसेस है लैंग्वेज का वो भी सेम प्रोसेस को फॉलो करता है. वी कांट से, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते दैट द लैंग्वेज इज़ इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि हमारे माइंड में एक ख़ास जगह है. ठीक है, उस खास पॉइंट में ही वो लैंग्वेज मौजूद है. नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट द थिंग इज दैट इट्स नॉट इवन ट्रू दैट अ पर्टिकुलर वर्ड इज इन वन प्लेस इन अ पर्सनस ब्रेन. इवन कि हम ये भी नहीं कह सकते कि एक ख़ास वर्ड जो है वो किसी भी शख्स के ब्रेन में एक ख़ास जगह पर, एक लोकेशन पर मौजूद है. द इंफॉर्मेशन दैट कम्स टुगेदर when we understand or say word arrives from many places. कि जब भी कोई हम इंफॉर्मेशन या कोई वर्ड अटर करते हैं, उसको बोलते हैं, तो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन से डिफरेंट लोकेशंस में से उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही होती है. एंड इट इज़ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द वर्ड मीन. और ये सारी जो है बातें डिपेंड करती हैं कि वो वर्ड क्या है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ एक वर्ड की, दैट इज़ एप्पल. ठीक है, एक फ्रूट है एप्पल. एंड वी आर लाइकली टू यूज़ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट एप्पल्स लुक, फील, स्मेल एंड टेस्ट लाइक इवन दो वी आरंट अवेयर ऑफ डूइंग दिस. ठीक है, अब एक एप्पल को बोलने में भी हमारी जो माइंड में सेंसेशन से रिलेटेड जितने भी डोमेन्स हैं वो तमाम इसमें इन्वॉल्व होती हैं. अब इसको देखने में कि इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस से ताल्लुक़ है वो ब्रेन का सेक्शन वो इन्फॉर्मेशन देगा. ठीक है, इसकी स्मेल कैसी होती है, डिफरेंट ब्रेन के लोकेशन से, पार्ट से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी. इसका टेस्ट कैसा होता है. सो इसी तरह से लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, टॉकिंग एंड रीडिंग, ये तमाम जो स्किल्स हैं ये इन्वॉल्व करती हैं एक्टिविटीज़ माइंड के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पोर्शंस में ये तमाम जो है वो स्किल्स लोकेट करती हैं. हाउएवर सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर मोर इन्वॉल्व इन लैंग्वेज देन अदर पार्ट्स. हाँ, ये हो सकता है कि सम टाइम ब्रेन का एक हिस्सा जो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग में या हमारी कॉम्प्रीहेंशन में या हमारी प्रेजेंटेशन में बनिस्बत दूसरे पार्ट से. सो आई होप कि लैंग्वेज ब्रेन में किस जगह पर मौजूद होती है ये तमाम प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कनेक्शन बिटवीन साइकोलिंग्विस्टिक एंड न्यूरोलिंग्विस्टिक. इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है. एज यू कैन सी, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स इज डीपली इंटरट्वाइंड विद साइकोलिंग्विस्टिक. दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है. विच इज़ द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज
processing steps that are required for speaking and understanding words and sentences, जिसको हम words और sentences को समझने में, उनको अदा करने में इस process में study करते हैं. Learning first and later languages and also of the languages, processing in disorder of speech, language and reading. Next we are going to study the differences between psycholinguistic and neurolinguistic. जैसा कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा आपस में इनका जो है वो कनेक्शन है, सिमिलैरिटीज़ हैं, माइंड से, लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, मगर इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं. इसकी डिटेल को हम बाद में डिस्कस करते हैं. But in one word or in major form or terms, we can say that a noun that difference between psycholinguistic and neurolinguistic is that psycholinguistic is the study of the comprehension and production of language. कि हमने देखा कि लैंग्वेज की प्रोडक्शन को और कॉम्प्रिहेंशन के स्टडी करने को हम साइकोलिंग्विस्टिक कहते हैं और ये स्पोकन रिटन फॉर्म में हो सकती है. ऑन द अदर हैंड न्यूरोलिंग्विस्टिक इज साइंस एंड दिस साइंस इज कंसर्न विद द ह्यूमन मेन ब्रेन मैकेनिज्म कि हमारा मेन का जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या फिलॉसफी है, अंडरलाइंग द कॉम्प्रिहेंशन, प्रोडक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, बी इट स्पोकन, साइन और रिटन. अब साइकोलिंग्विस्टिक जो है और साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज स्टडी है ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन लिंग्विस्टिक फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करता है. द फील्ड इज कंसर्न विद साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इनेबल ह्यूमन टू एक्वायर, यूज, कॉम्प्रीहेंड एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज. अब ये जो डिसिप्लिन है ये मेनली कंसर्न है विद द मैकेनिज्म इन विच लैंग्वेज जो है वो प्रोसेस होती है और रिप्रेजेंट होती है ब्रेन में. अब जो मॉडर्न रिसर्च है वो मॉडर्न रिसर्च मेक यूज ऑफ बायोलॉजी, वो क्या है कि न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव साइंस, लिंग्विस्टिक एंड इंफॉर्मेशन साइंस टू स्टडी हाउ द ब्रेन प्रोसेसेस लैंग्वेज एंड लेस टू नो प्रोसेस ऑफ सोशल साइंसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन theories and infant development, among others. So there are number of sub-disciplines with non-invasive technique for studying the neurological working of the brain. For example, neurolinguistic has become a field in its own right. अब ये एक अपनी एक फील्ड, एक डोमेन, एक जो है वो टर्म बन चुकी है. Initial forays into psycholinguistic were found in philosophical and educational field, due mainly to their location independent other than applied sciences. On the other hand, अब न्यूरोलिंग्विस्टिक जो है is the study of neural mechanism in the human brain that control the comprehension, production and acquisition of language. ये तीन चीज़ें हैं जिनको न्यूरोलिंग्विस्टिक जो है वो कंट्रोल करती है. ये आपने माइंड में रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना. और यही तीन फील्ड इंपॉर्टेंट हैं: कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज. As an interdisciplinary field, neurolinguistics draw method and theories from fields such as neuroscience, linguistics, cognitive science, communication disorder, and neuropsychology. Researchers are drawn to the field from a variety of background, bringing along a variety of experimental technique as well as widely varying theoretical perspective. Much work in neurolinguistics is informed by model in psycholinguistic and theoretical linguistics and is focused on investigate करता है that how brain can implement the processes that theoretical and psycholinguistic propose are necessary in producing and comprehending language. Neurolinguistic study the psychological mechanism by which the brain processes information कि किस तरह से उसने information को process करना है related to the language, उस खास language से related होगा ये, and evaluate linguistic and psycholinguistic theories using physiology, जो कि हमने इसकी तीन टाइप पढ़ी, एफेजिया की, ब्रेन इमेजिंग की, इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी की एंड कंप्यूटर मॉडलिंग की.
सो आई होप के डिफरेंसेस जो है दोनों फील्ड्स का, साइकोलिंग्विस्टिक का एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक का, आपको क्लियर हो गया होगा. सो आपने इसको मज़ीद अच्छे से सुनकर समझ लेना है. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. थैंक यू.